Good morning, everyone. Hope so that you all are fine at your house. So, today we are going to start with our chapter number 13, a globe, latitude and longitude. ये हमारा दूसरा चैप्टर है ज्योग्राफी का. हम लोगों ने एक चैप्टर ज्योग्राफी का ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, which is our chapter number 12. So, after chapter number 12, we are going to start with chapter number 13, a globe, latitude and longitude. So we are starting from the glossary portion. In glossary, there are only less words which I found that will be difficult for you. So I just noted it down. The first one is a geodetic. What does the geodetic means? The branch of applied mathematics that deals with the accurate measurement of the earth, geometric shape, orientation and gravitational field. मतलब कि ये एक ऐसी ब्रांच है अप्लाइड मैथमेटिक्स की कि जो एक एक्यूरेट मेजरमेंट अर्थ के जियोमेट्रिकल शेप का, उसकी ओरिएंटेशन और उसके ग्रेविटेशनल फील्ड का देता है. दैट इज नोन एज एन जियोडेटिक. मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. व्हेन एन ऑब्जेक्ट दैट इज मूविंग अराउंड अ सेंट्रल पॉइंट अपीयर्स टू मूविंग अवे फ्रॉम द सेंटर पॉइंट बाय द फोर्स. जो ऑब्जेक्ट सेंटर पॉइंट के आसपास घूमता है वो अगर सेंटर पॉइंट से दूर घूमने लगे कोई फोर्स से, तो उस फोर्स को हम कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. विच फोर्स? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन इज थर्ड वन, ऑर्बिटल प्लेन. ऑर्बिटल प्लेन मतलब क्या होता है? द पाथ ऑन विच द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. जिस पाथ पर अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है उसको हम कहते हैं ऑर्बिटल प्लेन. मूविंग टू द फोर्थ वन, एंगुलर डिस्टेंस. एंगुलर डिस्टेंस मतलब क्या होता है? Is the distance between the two sight lines or between the 2 points objects as viewed from an observer. अगर कोई ऑब्जर्वर जो मतलब कि जो देख रहा है उसके हिसाब से अगर 2 पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को हम एंगुलर डिस्टेंस कहते हैं. द डिस्टेंस बिटवीन और द एंगल बिटवीन the 2 points of the objects, that is known as an angular distance. Moving to the last one, which is the parallel. Parallel means side by side and having the same distance continuously between them. दोनों side by side होते हैं, like this one and this one, और इन दोनों के बीच का distance भी equal distance होता है. They will be equidistant. They will be having the same distance continuously between them and they are being side by side. So these are the glossary portion of your chapter number 13. Now we are going to start with our chapter number 13. Okay, so here is our chapter number 13, a globe, latitude and longitude. So now let me first tell you that what is the thing which we are going to study in this chapter. Globe. What is globe? Globe is a model of the earth. What are latitudes, what are longitudes, what is the grid pattern, and if you remember in our basic worksheet we have done these zones, heat zones, right? Torrid zone, frigid zone, then equator. That is the thing which we are going to do in this chapter. We will clear all the ideas. And here is a newsmaker. Al-Biruni was an Iranian astronomer and geographer who is regarded as one of the greatest scholar of the medieval Islamic era. वो medieval Islamic era का सबसे बड़ा scholar था. He was one of the first to devise a simple formula to calculate the earth radius and also examine the concepts of the rotation and revolution of the earth. ये एक पहला इंसान था जिसने अर्थ के रेडियस को इजीली कैलकुलेट करने का सिंपल फॉर्मूला दिया, एंड प्लस उसने हमें एक्सप्लेन किया दैट हाउ द रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन इज बीन कॉज्ड एंड व्हाट आर दे एक्चुअली. He developed a method to explain how to make an accurate geodetic measurements. Geodetic का मैंने मतलब बताया था कि अगर हमें एक accurate measurement चाहिए अर्थ की, उसकी ओरिएंटेशन मतलब कि वो कैसे रिवॉल्व कर रहा है, उन सब चीज़ों के लिए, तो वो है जियोडेटिक. तो जियोडेटिक मेजरमेंट के लिए इसने सबसे इजी वाला फॉर्मूला डिटरमाइन किया था लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स को डिटरमाइन करने का. सो लेट अस हैव अ लुक ओवर हियर. ग्लोब में लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, and then we are going to study about the heat zones, torrid zone, temperate zone and frigid zone. Grid मतलब क्या होता है? It is a network of the line formed by the latitude and longitudes on the globe is called map. Latitude और longitude जैसे मिलते हैं और जो वो बॉक्स टाइप बनता है जो पीछे दिखाया गया है, that is known as a grid. और longitudes हमारी क्या हेल्प करता है? Longitudes help to find out the local time. So let's move on to the chapter. Here is IDL, means international date line, runs through the 180-degree longitude. So warm up exercise is the exercise which we will do afterwards. So we are starting from the globe. The globe.
You have learned that the earth is spherical in shape. It is slightly flattened on both the poles and bulges at the equator. मतलब क्या होता है कि हम लोगों ने पढ़ा था कि अर्थ जो है वो एक स्फेरिकल शेप में है। कौन से शेप में है? स्फेरिकल शेप में, मीन्स राउंड लाइक शेप। उसके जो दोनों पोल्स है वो फ्लैट है एंड ब्लज एट इक्वेटर। ब्लज्ड मतलब क्या होता है? ब्लजेस एट द इक्वेटर, मतलब आप ये देख रहे हो, इट इज़ राउंड एट द इक्वेटर। This bulge is due to the centrifugal force caused by the rotation of the earth and this shape is referred to be as an geoid. इस शेप को हम क्या कहेंगे? We refer this shape as an geoid. हम इस शेप को क्या देते हैं? हम लोग इस शेप को geoid कहते हैं। Moving to the next para. In our studies, we represent the earth by a spherical model called globe. The globe is always mounted on a stand with its axis tilted, as you can see in the picture. यहाँ पर हमें एक ग्लोब का पिक्चर दिखाया गया है। Unfortunately हमारी स्कूल शुरू नहीं है, और else I would have shown you the globe in the classroom also. ये जो है वो एक स्टैंड पर फिक्स होता है और वो टिल्टेड होता है, वो एकदम स्ट्रेट नहीं होता है, वो टिल्टेड होता है, ताकि एक्चुअली हमारा अर्थ भी टिल्टेड है। इट इज़ बिन टिल्टेड एट 23.5 डिग्री। सो ये यहाँ पर ग्लोब भी टिल्टेड होता है, सो दैट वी कैन गेट द एक्चुअल आइडिया। हम लोग देख सकते हैं दिस इज द वेरी स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ। अर्थ लुक सिमिलरली लाइक दिस. So this is a globe. The earth axis, which is the imaginary line through the center of the earth on which the earth rotates, is likewise tilted at 23.5. As I told you, वो 23.5 को होती है। देखो ये एक एकदम स्ट्रेट लाइन होती है, लेकिन वो 23.5 तक टिल्टेड होती है। और नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, here it is written 23.5. Okay, the angle is made between the earth axis and the line drawn through the earth center perpendicular to its orbital plane. मतलब कि वो जो लाइन जो ड्रॉ की है हम लोगों ने, जो एक परपेंडिकुलर लाइन है अर्थ के सेंटर से टू इट्स ऑर्बिटल प्लेन, समझ गए? दैट इज हाउ द एंगल इज बीन फॉर्म्ड. द नॉर्थ एंड ऑफ द एक्सिस इज नोन एज द नॉर्थ पोल. जो नॉर्थ एंड है एक्सिस का उसे नॉर्थ पोल कहते हैं, एंड इट साउथ एंड इज नोन एज एन साउथ पोल. साउथ एंड को साउथ पोल कहते हैं. प्लेसेस ऑन द अर्थ आर लोकेटेड बाय द मीन्स ऑफ द टू सेट्स ऑफ द लाइन्स ड्रॉन ऑन द ग्लोब और द मैप. अगर हम कोई भी प्लेस हमें लोकेट करनी है अर्थ के अंदर, तो हम लोग कैसे लोकेट करेंगे? वी विल लोकेट दैम एट द सेट्स ऑफ द टू लाइन्स. दो लाइन से हम लोग उन्हें लोकेट करेंगे, विच आर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. सो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि लैटिट्यूड क्या है और लॉन्गिट्यूड क्या है. जियोग्राफर्स यूज दिस इमेजिनरी लाइन्स विच डू नॉट एक्चुअली एग्जिस्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ टू स्टडी लोकेशन. ये जो लाइन्स है वो एक्चुअली नहीं है. आप अगर अर्थ में देखने जाओगे तो ये लाइंस एक्चुअली नहीं है. ये जो लाइंस है ये इमेजिनरी लाइंस है, मतलब कि इन्हें क्लियरली लोकेशन को समझने के लिए जियोग्राफर्स जो है वो इस लाइन को इमेजिन करते हैं और इस हिसाब से उन्हें एक एग्जैक्ट लोकेशन मिलती है. दे आर गेटिंग वन एग्जैक्ट लोकेशन. सो फॉर दैट दे आर यूजिंग दिस लैटिट्यूड्स. लैटिट्यूड्स क्या है? द टू एंड पॉइंट्स ऑन द अर्थ एक्सिस, द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, आर द बेसिक पॉइंट्स of the reference to locate the places. अभी जो ये दो एंड पॉइंट्स है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, वो बेसिक पॉइंट्स है लोकेट करने के लिए. हाउ? लेट मी एक्सप्लेन यू एवरीथिंग. इफ़ वी इमेजिन अ सर्कल अराउंड द मिडल ऑफ द अर्थ, अगर हम मिडल में एक सर्कल को इमेजिन करते हैं एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द टू पोल्स, वी विल अराइव एट द इक्वेटर. अगर आप एग्जैक्टली सेंटर में, अर्थ के एग्जैक्ट सेंटर में, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीचों बीच अगर हम उससे एक सर्कल को मतलब इमेजिन करते हैं, तो हम उन्हें नाम देंगे इक्वेटर, जो कि द सेकेंड रेफरेंस पॉइंट यूज टू बी लोकेट द प्लेसेस. जो सेकेंड रेफरेंस पॉइंट है जो हमें प्लेसेस लोकेट करने में हेल्प करता है. इक्वेटर और द ग्रेट सर्कल डिवाइड्स द अर्थ इनटू द टू इक्वल पार्ट्स. इक्वेटर कहो या ग्रेट सर्कल कहो, वो अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द सदर्न हेमिस्फीयर. मतलब कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है एक और एक सदर्न हेमिस्फीयर है. The equator represents 0 degree, while the north pole and the south pole are 90 degree. North and 90 degree south of the equator respectively. मतलब कि जो इक्वेटर जहाँ पर है वो 0, अगर उससे मैं ऊपर जा रही हूँ तो 90 डिग्री नॉर्थ, अगर उस इक्वेटर से मैं नीचे जा रही हूँ एग्जैक्टली साउथ पोल तक, दैट इज 90 डिग्री साउथ पोल. सो ये क्या हुआ? वो एकदम बीचों बीच 0 पर है, ऊपर भी 90 नीचे भी 90.
Latitude is the angular distance of a place north or the south of the equator as measured from the center of the earth. Latitude क्या है? वो एक angular distance है प्लेस का जो कि नॉर्थ और साउथ पोल ऑफ द इक्वेटर में से मेजर किया जाता है. In order to measure the equal distances from the equator, circles are drawn at an angular distance of 1 degree apart from the center of the earth on the both the sides of the equator as shown in the figure 13.2. तो यहाँ पर 13.2 में हमें दिखाया गया है कि कैसे लैटिट्यूड्स होते हैं. लैटिट्यूड्स आर दिस लाइन पैरेलल लाइन टू द इक्वेटर. तो क्या किया है उन्होंने, वो हर एक डिग्री पर सर्कल्स को ड्रॉ करते हैं टू अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली. तो अगर वो लोग ऐसे ही ऊपर भी करेंगे, नीचे भी सारे सर्कल्स ड्रॉ करेंगे. यहाँ पर जो ड्रॉ किया है ये नॉर्थ पोल पर 50 डिग्री पर किया है और यही चीज़ साउथ पोल पे 50 डिग्री पर की है. वो लोग हर एक डिग्री पर एंगुलर डिस्टेंस में मतलब इक्वल डिस्टेंस पे अगर ड्रॉ करेंगे देन वी आर गोइंग टू गेट दी लैटिट्यूड्स. ऑल लैटिट्यूड्स आर ड्रॉन पैरेलल टू द इक्वेटर एंड रन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. वो वेस्ट टू ईस्ट से रन करते हैं और वो पैरेलल है मतलब एक दूसरे के बीच में इक्वल डिस्टेंस है. दे आर हैविंग द सेम डिस्टेंस बिटवीन देम. उन दोनों के बीच में इक्वल डिस्टेंस है. As these lines are parallel to the equator, they are also known as an parallel of latitude. वो इक्वेटर से पैरेलल है तो उन्हें हम क्या कहेंगे, पैरेलल ऑफ दी लैटिट्यूड्स भी कह पाएंगे. सो देर आर एक्चुअली 180 पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड इन ऑल. टोटल 180 है. क्यों 180 है? क्योंकि 90 पैरेलल ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड 90 ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर. मैंने आपको बताया था 0 पर होता है इक्वेटर. तो ऊपर जब हम जा रहे हैं व्हेन वी गो अप साइड देयर इज ए 90 डिग्री टिल नॉर्थ, राइट. नॉर्थ तक का 90 डिग्री है, नीचे 90 डिग्री साउथ है. तो 90 सर्कल्स ऊपर बनेंगे और 90 सर्कल्स नीचे बनेंगे हमारे. अब समझ गए मैं क्या कह रही हूँ. सो हमारे पास 180 पैरेलल लैटिट्यूड्स होते हैं. इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स ऑफ द इक्वेटर आर, सबसे पहले इंपॉर्टेंट लाइन और लैटिट्यूड है इक्वेटर जो 0 डिग्री पर है. फिर आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 साउथ, आर्टिक सर्कल 66.5 नॉर्थ, एंटार्क्टिक सर्कल 66.5 साउथ, नॉर्थ पोल एट 90 डिग्री एंड साउथ पोल एट 90 डिग्री. तो ये जो है ये आपको याद रखने हैं. यू हैव टू ड्रॉ दिस इन योर HW बुक. ये आपको आपकी HW बुक के अंदर ड्रॉ करना है दिस फिगर, because this is really very important. You have to remember this very important. 90 degree north, that is North Pole. At 66.5 north, Arctic Circle. 23.5 north, Tropic of Cancer. 0 degree equator. 23.5 south, Tropic of Capricorn. 66.5 south, Antarctic Circle. 90 degree south is the South Pole. So these are the really very important latitudes. Now moving to the next topic, which is the heat zones. Next topic कौन सा है? Heat zones. Heat zones क्या है? The climate changes from hot to warm, warm to cool, and cool to frigid or cold as we move away from the equator towards the pole. This is because मतलब कि climate कैसे change होता है. इक्वेटर से जैसे ही हम दूर जाते जाएंगे वो क्या होता जाएगा, ठंडा होता जाएगा. हॉट से वार्म होगा, वार्म से कूल होगा, कूल से फ्रिजिड होगा या कोल्ड हो जाएगा. सो इट मीन्स कि वो धीरे धीरे ठंडा होता जा रहा है. आप कोई भी पोल के पास जाओ, नॉर्थ पोल जाओ, साउथ पोल जाओ, वो ठंडा होता जाएगा. द हॉटेस्ट विल बी एट द इक्वेटर. Why? Because as we move away from the equator, the sun's rays falls on the earth's surface at a more slanted angle and thus heat is spread over a large area. जैसे ही आप इक्वेटर से दूर जाते जाओगे तो आपकी ठंडी बढ़ती जाएगी, गर्मी नहीं. ऐसा क्यों? क्योंकि सन की जो रेज है वो स्लैंटिंग वे में फॉल होती है. पोल्स पर तो वो डायरेक्टली फॉल होती ही नहीं है, लेकिन वो डायरेक्टली फॉल होती है सन की रेज तो वो इक्वेटर के पास, इसीलिए वो एरिया जो है वो सबसे हॉट होता है. द रेज ऑल्सो ट्रैवल अ लॉन्गर पार्ट of the atmosphere and hence heating has been reduced. वो रेज जो होती है सन की रेज उन्हें ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, इसीलिए उनकी जो हीट होती है वो कम हो जाती है. That is the reason why the heat gets lower down. So this is the reason why the coldness increases as we go near to the poles. On the basis of the distance from the equator, the earth is divided into 3 broad climatic zones. हम उन्हें 3 climatic zones में divide कर सकते हैं, which are known as heat zones, जो हम लोग अभी देख लेते हैं at 13.4 exercise. उसके लिए सबसे पहले तो heat zones हमें यहाँ पर दिखाए गए हैं. सबसे पहला है the torrid zone lies between the Tropic of Cancer in the north and the Tropic of Capricorn in
द साउथ। यहाँ पर सबसे पहले हमें लोकेशन दिखाई गई है कि कहाँ पर वो लोकेटेड है। डू यू अंडरस्टैंड? वो कहाँ पर लोकेटेड है? टॉरिड जोन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में है। द इक्वेटर फॉल्स इन दिस जोन, इक्वेटर जो है वो इसी जोन के अंदर आता है। सिंस दिस रीजन रिसीव्स डायरेक्ट रेज ऑफ द सन थ्रू आउट द ईयर, इट इज़ द हॉटेस्ट जोन। ये सबसे हॉटेस्ट जोन है क्योंकि यहाँ पर और सन की रेज जो है वो डायरेक्टली फॉल होती है पूरे ईयर, थ्रू आउट द ईयर, मतलब पूरा साल सबसे ज़्यादा अगर रेज फॉल होती है सन की डायरेक्टली तो वो इस जगह पर फॉल होती है। Understood? So this is the hottest zone of all. Moving to the next zone, which is the temperate zone. The temperate zone is a zone of the moderate temperature. The north temperate zone lies between Tropic of Cancer and the Arctic Circle. The south temperate zone lies between Tropic of Capricorn and Antarctic Circle. अब आप यहाँ पर देख रहे हो साउथ पोल और नॉर्थ पोल के दोनों के अलग अलग टेम्परेट जोन्स हैं। यहाँ पर उनकी लोकेशन दिखाई गई है कि नॉर्थ टेम्परेट जोन जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्टिक सर्कल के बीच में है और साउथ टेम्परेट जोन जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड एंटार्क्टिक सर्कल के बीच में है। और ये जो है ये एक मॉडरेट टेम्परेट जोन है, मतलब कि यहाँ पर मॉडरेट मीडियम टेम्परेचर होता है क्योंकि यहाँ पर सन की रेज जो है वो अर्थ सरफेस से थोड़ी स्लैंटिंग आती है ईयर पूरे साल, तो ये मॉडरेट जोन है कि मतलब मीडियम वाला है एटमोसफियर हम लोग कह सकते हैं। एंड लास्ट वन इज द फ्रिजिड जोन। इट इज़ अ वेरी कोल्ड जोन। फ्रिजिड मीन्स कोल्ड। द नॉर्थ फ्रिजिड जोन लाइज बिटवीन आर्टिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल while the south frigid zone lies between Antarctic Circle and the South Pole. These regions are extremely cold and permanently frozen because the sun's rays reach the earth's surface at an extreme slanting angle. ये जो फ्रिजिड जोन है ना वो सबसे ठंडा वाला जोन है, सबसे ठंडा वाला, और इसमें भी दोनों अलग अलग है, नॉर्थ फ्रिजिड जोन एंड साउथ फ्रिजिड जोन। नॉर्थ फ्रिजिड जोन जो है वो आर्टिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में है एंड साउथ फ्रिजिड जोन जो है वो एंटार्क्टिक सर्कल और साउथ पोल के बीच में है। और ये आप लोग कह सकते हो कि दिस इज़ द फ्रोज़न जोन। वो पूरा साल फ्रोज़न ही रहता है क्योंकि वहाँ पर सन की रेस बहुत ज़्यादा स्लैंटिंग गिरती है, तो वो यू कैन से कि मैरिली वहाँ पर सन की रेस अप्रोप्रिएटली पहुँचती ही नहीं है। So they are not reaching over there in an appropriate way. So सबसे पहला जोन जो हमने पढ़ा टॉरिड जोन विच इज़ द हॉटेस्ट जोन, टेम्परेट जोन विच इज़ द मॉडरेट जोन एंड फ्रिजिड जोन विच इज़ द कोल्डेस्ट जोन और द कोल्ड जोन। यही चीज़ हम लोग यहाँ पर मैं आपको ये समझा देती हूँ, फिर हम लोग कल करेंगे लॉन्गिट्यूड के बारे में। सो दिस इज़ द टॉरिड जोन एज वी टॉक, द हॉटेस्ट जोन जिसके अंदर इक्वेटर आ जाता है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में है। देन कम्स द नॉर्थ टेम्परेट जोन जो आर्टिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और साउथ टेम्परेट जोन जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड एंटार्क्टिक सर्कल के बीच में आता है एंड दिस इज़ द मीडियम वन एंड दिस इज़ द नॉर्थ फ्रिजिड जोन विच कम्स बिटवीन आर्टिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल एंड साउथ फ्रिजिड जोन विच कम्स बिटवीन एंटार्क्टिक सर्कल एंड साउथ पोल। सो दिस इज़ द डायग्राम विच यू हैव टू रिमेंबर। ओके, ये डायग्राम भी आपको ड्रॉ करना है अपनी HW बुक के अंदर। दिस इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट डायग्राम। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो विद द लॉन्गिट्यूड पोर्शन। ओके एवरीवन, गुड बाय एंड टेक केयर।